students, we were doing the random experiment of throwing a die, and we know that if we throw a die, then the sample space is capital S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. So let us find some probabilities. We know that formula of probability of an event is equal to number of all possible outcomes is in denominator, and in numerator there is number of favorable outcomes. So if I am going to throw a die, what is the probability of getting 1? Let us find probability of 1 if I throw a die. First of all possible outcomes are total 6, and in favor of 1 there is only one outcome. In favor of 1 there is only one outcome, and that is number 1. So probability of 1 is equal to 1 by 6. So let us find some more probabilities. Can you tell what is the probability of 2? Total outcomes 6 and in favor 2. See, 2 is one number. It is not two numbers. 2 is one number. Therefore, in favor of 2, there is only one outcome. Similarly, the probability of 3 is equal to 1 by 6. Probability of 4 is equal to 1 by 6. Probability of 5 is equal to 1 by 6. And probability of 6 is equal to 1 by 6. Now let us revise what we have learned till now. See, observe probabilities of 1, 2, 3, 4, 5, 6. Can you observe that all probabilities are equal? That is, probability of 1 is equal to probability of 2 is equal to probability of 3 is equal to probability of 4 is equal to probability of 5 is equal to probability of 6 is equal to 1 upon 6. All probabilities are equal. Now tell me, which results can you conclude from this? First, since probabilities of all outcomes respectively are equal, all probabilities are equal to 1 by 6. Therefore, all outcomes in this sample space are equally likely outcomes. Since probabilities are equal, therefore all outcomes are equally likely outcomes. This is the first result. Now one more result. I will introduce one more word to you. Unbiased. In your practice question, you will find such questions. An unbiased die has been thrown. Find the probability of something something or probability of 6. Then you should know what does this word mean. Unbiased die.
See, this result again we will conclude from here. If the probabilities of 1, 2, 3, 4, 5, 6, if the probabilities of all these outcomes are equal, then we say that the die is unbiased. Here all probabilities are equal, then we can say that the die thrown was unbiased die. Okay? Now from here we can practice some more questions. Do you know what is an impossible event? Impossible event, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, ऐसा इवेंट जो हो ही ना पाए. जैसे सपोज मैं कहता हूं मैंने एक डाई को थ्रो किया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 16 आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 17 आए. अब एक डाई पे जो नंबर होते हैं वो तो 1 to 6 होते हैं, 17 तो आ ही नहीं सकता. क्या 17 आ सकता है? नहीं, क्योंकि डाई पे वो नंबर ही नहीं है. तो इस तरह के इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं. मैथमेटिकली हम इम्पॉसिबल इवेंट को किस नंबर से रिलेट कर सकते हैं? लेट अस सी. क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting 7. अगर मैं एक डाई को थ्रो कर रहा हूं तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 7 आएगा? वैसे तो इस अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इस बात की प्रोबेबिलिटी, इस बात की पॉसिबिलिटी है ही नहीं. मैथमेटिकली क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, फॉर्मूले को यूज करते हैं. 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डिनोमिनेटर है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 6, न्यूमरेटर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. अब सैंपल स्पेस को देखो, क्या 7 के फेवर में कोई आउटकम है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 तो इसमें है ही नहीं. इसका मतलब ये है कि 7 के फेवर में 0 आउटकम्स है, तो न्यूमरेटर हो गया 0 और 0/6 इज इक्वल टू 0. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 इज इक्वल टू 0. जनरली हमने किया इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? जो इवेंट हो ही ना पाए, जिस इवेंट के होने की संभावना ही ना हो. जब इस इवेंट को हमने प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से मैथमेटिकली फाइंड आउट किया, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी को एक नंबर से रिलेट किया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आई 0. यानी यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आएगी? 0. ऐसा इवेंट जो हो ही ना पाए, ऐसा इवेंट जो इम्पॉसिबल इवेंट है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 0. अब एक और डेफिनेशन करते हैं. श्योर इवेंट, ऐसा इवेंट जिसके होने की श्योरिटी पक्की हो. सिंपल लैंग्वेज में ऐसा इवेंट, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करें, ऐसा इवेंट जो हो, डेफिनेटली हो, 100% हम श्योर हों कि ये होगा ही होगा. कैसे? सपोज मैं एक इवेंट लिखता हूं. अगर हमने एक डाई को थ्रो किया है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? गेटिंग a number less than
7। एक डाई को मैंने थ्रो किया है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक ऐसा नंबर आएगा जो 7 से छोटा होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब भी हम डाई को थ्रो करेंगे 1 2 3 4 5 या 6 आएगा और ये सारे नंबर 7 से छोटे हैं। इसका मतलब इस बात की श्योरिटी है कि जब भी हम डाई को थ्रो करेंगे 7 से छोटा नंबर ही आएगा। अब मैथमेटिकली हम इसकी प्रोबेबिलिटी को किस नंबर से रिलेट कर सकते हैं? लेट अस सी। Probability of getting a number less than 7. Total outcomes 6. इसके फेवर में कितनी आउटकम्स है? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये सारे नंबर 7 से छोटे हैं। एंड 6/6 इज इक्वल टू 1। यानी इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल है। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। ठीक है, दो चीजें करी है हमने। एक है इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा इवेंट जो हो ही ना, जिसके होने की पॉसिबिलिटी ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आएगी। श्योर इवेंट, ऐसा इवेंट जो 100% हम श्योर हैं कि ये तो होगा ही, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगी। अब एक छोटी सी चीज डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने ये कंसेप्ट लिखा था किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम एक ऐसे नंबर से रिलेट करते हैं जो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 है। यहाँ पे हमने कई इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज निकाली है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 3 4 5 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। अब केयरफुली ऑब्जर्व करो, इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और 1/6 एक ऐसा नंबर है जो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, इक्वल टू 0। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो या तो 0 के इक्वल होगी, 0 से बड़ी होगी, या 0 से छोटी, या 1 से छोटी होगी, या 1 के इक्वल होगी। इसी तरह के हम और क्वेश्चंस करेंगे और इस कंसेप्ट को और डिटेल में स्टडी करेंगे।